Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick brief what we will be doing today. Budget arrest, growth decline. Basically ये जो article है means oriented Indian economy के perspective से है that how can the budget arrest growth decline. क्या है मैं आपको बताऊंगी context. Don't worry, when we'll come to this article you will get a complete picture of it. Paper 3. Bhashini platform paper 2 plus prelims. Kanha Tiger Reserve and this river also prelims oriented. Bridge the milk divide for a nutritional secure India. This article you can connect with mains. ठीक है. So here I'll let you know what are the disparities in the milk production, what can be done, and you can connect it with your paper 1 with respect to development issues, with respect to poverty. See, UPSC has always focused on the main cause of hunger. Right? In 2018 they had a question, in 2019 they asked a question regarding poverty and hunger in India. Right? So this particular article today it will discuss ki how milk should be accessible to everyone in India. Right? It will highlight the differences in the milk availability. So how these issues are connected to paper 1, paper 2, paper 3, you have to connect, you have to make sure that you learn the syllabus. Social inequalities say, health say, what are the policy solutions, usse you can connect it with. So please do learn the syllabus first of all. Then you will build that connectivity. Now Sriram's IS is serving the nation since 1985. You can subscribe to the channel. You will get the notification of every session that gets published, be general, current oriented, and if you are having any doubt in filling the forms also that are out for if you are preparing for 2025 attempt for prelims and you are giving the upcoming prelims, right? So every session gets published and you can get the notification. So do subscribe so that whenever that session is on the platform, you will have a notification. You can usi time pe you can see and get the complete clarity. So here the news is, in a first for Northeast India, Tripura has pioneered the use of artificial intelligence for greater digital inclusion by adopting state-of-the-art text-to-speech technology under the Bhashini initiative, government officials said recently. See, अब ये आप कहोगे मैम ये तो इंग्लिश तो मुझे ही पढ़नी होती तो मैं ही पढ़ लेती या पढ़ लेता. कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ. त्रिपुरा पहली स्टेट बन गई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टू यूज एआई फॉर व्हाट पर्पस, टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन. इसका मतलब स्टेट नाउ इज यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल एक्सेस द डिजिटल सर्विसेज, द इंफॉर्मेशन. लैंग्वेज बैरियर के चलते जिन्हें डिफिकल्टीज आती थी स्पेसिफिकली उनके लिए तो भाषिणी इनिशिएटिव जो है सरकार का दैट इज बेसिकली to promote Indian languages in digital spaces. Text-to-speech technology. The written text will be converted into the spoken words. Sorry, the written text जो भी होगा, this technology converts that text into your spoken words. It will be easier for people who may not be able to read, who may not be able to write fluently. Right? So let's talk about this platform, Bhashini platform. तो भाषा से you can link Bhashini. So Bhashini stands for Bhasha Interface for India. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जिससे इट हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस. देखो इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं और नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी. सो भाषिनी ब्रेक्स डाउन दैट लैंग्वेज बैरियर ताकि मोर पीपल कैन यूज द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन देयर ओन लैंग्वेज. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करने के लिए, डिजिटल सर्विसेज को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए इन इंडियन लैंग्वेजेस. तो यहाँ पर वॉइस बेस्ड फंक्शंस हैं एंड प्रमोट कंटेंट क्रिएशन इन डाइवर्स लैंग्वेजेस. जो टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है इन द स्पीच इट इज बिटवीन 22 लैंग्वेजेस. तो डिजिटल सर्विसेज कितनी एक्सेसिबल हो जाएंगी? इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग, यूजर्स कैन स्पीक एंड दे कैन हियर द इंफॉर्मेशन. जिन्हें पढ़ने में डिफिकल्टी होती है तो वॉइस बेस्ड सर्विसेज भी हैं. स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंडिविजुअल डेवलपर्स हैं, दे कैन यूज एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दे कैन यूज दीज टूल्स टू क्रिएट दी एप्स एंड सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेजेस. तो सरकार ने लॉन्च किया 2022 में लॉन्च इन जुलाई 2022 अंडर द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन. इसका ओवरऑल एम क्या है?
to provide technology translation services in 22 scheduled languages. ये मैंने बताया ना, AI और natural language processing resources public domain में it is making available to be used by MSMEs, startups and individual innovators. Android में और iOS apps के अंदर through these you can access the platform. एक user friendly platform है, right? Also यहाँ पर if anybody wants to volunteer and contribute language data, भाषा दान, so that is also there, right? So भाषिणी यूजफुल इसलिए है बिकॉज मोर पीपल कैन एक्सेस द डिजिटल सर्विसेज. सरकार की वेबसाइट्स होती हैं, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, अपनी लैंग्वेज में. बच्चे जो जॉब सीख कर रहे हैं वो बिजनेसेस दे कैन मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस. ठीक है. Now, moving ahead with the next article, before that, let me tell you, Shriram's IS has come up with this great series, podcast series is there, where you will get the episodes on this platform on various topics, geopolitical dialogues. बहुत से episodes out हो चुके हैं, so please do refer it. एक बार देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ एक entertainment की तरह नहीं सुनना है उसको. लिखना, best of faculties will be there. They will be discussing on very important topics. They will give you the rational insight. So have a look over it. Also there are other series as I have mentioned. So channel subscribe करेंगे तो you will get the notification of every session. हाल ही 2 साल की टाइग्रेस was found dead कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर in the मंडला डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पड़ता है? यहाँ. This is कान्हा नेशनल पार्क. तो कान्हा टाइगर रिजर्व को कान्हा नेशनल पार्क भी बोला जाता है. ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है. ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, और ये मैकाल हिल्स पड़ती हैं ईस्ट ऑफ सतपुरा रेंज, वहां पर ये टाइगर रिजर्व है. 1995 में इट वॉज क्रिएटेड और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया. 940 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर ये है. इट इज़ करेक्टराइज मेनली बाय, यहाँ पर आपको फॉरेस्टेड शेलो अंडुलेशंस देखने को मिलेंगे, हिल्स हैं, स्लोप्स, प्लेटूज, वैलीज, तो काफ़ी एक वेरिएशन देखने को मिलेगा. और द फॉरेस्ट डिपिक्टेड, अगर आपने देखा हो रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक, द फेमस नोवेल, द फॉरेस्ट डिपिक्टेड इन दैट, इट इज़ to be based on the jungles, it is including this reserve only. यहाँ पर ये जो रीजन है, एंशियंट ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ रहती हैं, गोंड, बैगा, ये ट्राइब्स हैं. एंड द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया ये रहा है टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट भूर सिंह और बारा सिंगा, भूर सिंह द बारा सिंगा, राइट. तो मतलब उसका ओवरऑल पिक्चर बता रखी है, उसका जोग्राफी बता रखी है, हिस्ट्री बता रखी है. एंड द फेमस बुक द जंगल बुक दैट इज बाय द रुडयार्ड किपलिंग इज बिलीव टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय दिस फॉरेस्ट ओनली. मोगली, भालू, शेर खान, characters like these, they have been influenced by the wildlife here. यहाँ पर आपको साल, बैम्बू, जामुन, अर्जुन, ये स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. दे हैव अ मिक्स ऑफ मॉइस्ट सॉल फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट. और रही बात एनिमल्स की, तो एनिमल्स यू विल गेट टू सी, रॉयल बंगाल टाइगर है, लेपर्ड है, स्लोथ बियर है. बेसिकली दिस रीजन इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली फॉर सेविंग बारासिंगा, दैट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये घग्गर रिवर आपको दिख रही है, इसके बारे में हमें बात करनी है. वाई वी हैव टू डिस्कस इट? न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक जॉइंट कमेटी दैट इज सेटअप बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इट हैज स्टडीड कि जो वाटर क्वालिटी है ऑफ दिस रिवर, दे हैव स्टडीड दैट एंड दे हैव फाउंड कि हाईली पॉल्यूटेड है. सेफ लिमिट मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर मैं बात करूं, सो दिस रिवर कंटेन्स 2 to 3 times मोर BOD देन द सेफ लिमिट. BOD क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नीडेड बाय द बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर. तो अगर BOD is too high, इसका मतलब the water has a, मतलब you can say it has a lot of pollution and less oxygen for aquatic life, right?
Because of high pollution level, the river water is unsafe and it is harmful to the human health and environment. ठीक है, घग्गर रिवर के बारे में पढ़ते हैं. ये एक सीजनल रिवर है, वेरी इंपॉर्टेंट. मॉनसून के टाइम पे ये बहती है, तभी इसको पानी मिलता है. हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है, हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है और थार डेजर्ट के पास जाकर ये डिसअपीयर हो जाती है. सवाल आ सकता है कि क्या घग्गर नदी जो है पाकिस्तान क्रॉस करती है? बिल्कुल. व्हेन घग्गर रिवर, ये जब नदी पाकिस्तान क्रॉस करती है, वहां पर इसको हाकड़ा रिवर बोला जाता है. तो टुगेदर दे आर नोन एज घग्गर हाकड़ा रिवर. ठीक है. अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो वैदिक सरस्वती रिवर का नाम सुना होगा आपने, सरस्वती रिवर. कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो घग्गर रिवर है इज द सेम एज द लॉस्ट वैदिक सरस्वती रिवर दैट इज मेंशन इन द हिंदू टेक्स्ट. बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ने दे हैव फाउंड मेनी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स अलोंग द रिवर बैंक्स. तो एक इंपॉर्टेंट रिवर रही है इन द एंशिएंट टाइम्स, राइट. ये ऐसा भी माना जाता है कि जो सतलुज और यमुना नदी हैं, एक बार ये घग्गर हाकड़ा रिवर में दे फ्लोड इनटू दैट, बट उसके बाद उनका रिवर बेड जो था वो था, बट बाद में उन्होंने दे हैव चेंज देयर कोर्स ऑल्सो. सो एक इंटरमिटेंट रिवर है, मॉनसून टाइम्स में ही बहती है, शिवालिक हिल से ओरिजिनेट करती है, हरियाणा राजस्थान से गुजरती है, और ये जो सीजनल नदी है ये 2 इरिगेशन कैनाल्स को फीड करती है दैट आर एक्सटेंडिंग इनटू द राजस्थान. तो पाकिस्तान जब ये फ्लो करती है तो इसको हाकड़ा बोला जाता है, तो घग्गर हाकड़ा रिवर हो गया. एंड हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई दिस रिवर विद द वैदिक सरस्वती रिवर ऑल्सो. इसके आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब बहुत ही सेटलमेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैव बीन एक्सकवेटेड. इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं कौशल्य, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी, शौतांग. तो नाम याद में रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखो, ये जो आर्टिकल है ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, आप हर किसी से लिंक कर सकते हो इसको. क्या ये आर्टिकल है? ये कह रहा है कि पुअर एंड वल्नरेबल पीपल, द चैलेंज आज के टाइम पे ये है कि ये जो लोग हैं, पुअर एंड वल्नरेबल पीपल, आर दे एबल टू अफोर्ड द मिल्क, right? Overconsumption by the wealthier individuals. So यहाँ बात हो रही है कि आपको एक बैलेंस लाना पड़ेगा between a fair distribution and controlled consumption. अगर मिल्क इज टू एक्सपेंसिव हो गया तो पुअर पीपल में नॉट गेट एनफ ऑफ इट, बट अगर ये फ्रीली अवेलेबल है विदाउट लिमिट्स तो रिचर पीपल में बाय इन द लार्ज क्वांटिटीज ऑल्सो, राइट? तो what can be the possible solution? Do let me know. उससे पहले कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया. द चैलेंज इज मेकिंग श्योर दैट मोस्ट वल्नरेबल पीपल हैव fair access to milk while also controlling how much milk is consumed by the wealthier people also. ये what is the disparity in the milk consumption? आप खुद सोचो कि एक रिच और एक पुअर में डिस्पैरिटी होगी या नहीं होगी. जो टॉप इनकम वाले हैं उनका क्या कंजम्पशन रहता होगा एज कंपेयर टू द वन हु आर द लोएस्ट इनकम वाले. अर्बन वर्सेस रूरल डिस्पैरिटी भी रहती होगी, बिल्कुल रहती होगी. सोशल ग्रुप डिस्पैरिटीज भी रहती होंगी. सोशल ट्राइब हाउस होल्ड दे कंज्यूम 4 लीटर लेस मिल्क पर कैपिटा. तो ये सारी बातें आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो. लेट्स डिस्कस. ठीक है, वन बाय वन आई टॉक अबाउट ईच पॉइंट. आप नोट्स बनाते चलो. पहले बात करते हैं इनकम बेस्ड डिस्पैरिटी की. क्या कह रहे हैं इनकम बेस्ड डिस्पैरिटी में? ये कह रहे हैं कि जो रिचर हाउस होल्ड्स हैं दे कंज्यूम 3-4 टाइम्स मोर मिल्क पर पर्सन देन द पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स, राइट?
मतलब wealthier people have much easier access to the milk while the poorest struggle to afford it, to obtain it. There is urban versus rural regional disparity also. Urban people अगर आप लगाएं, so they drink 30% more milk per person than the rural person. हालांकि सबको ये लगता है कि रूरल एरियाज में मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बिल्कुल होती है, बट रीजनल डिस्पैरिटी है. कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करती हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. कहीं पर देर इज मच मोर बेटर मिल्क अवेलेबिलिटी. शेड्यूल ट्राइब्स देख लीजिए, शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड दे कंज्यूम 4 लीटर्स लेस मिल्क पर पर्सन. आप इतना एक एक पॉइंट हर किसी से निकाल लेंगे ना, बात बन जाएगी. ठीक है, बट मैं अभी आगे आर्टिकल पे नहीं जा रही हूँ, पहले इसी पे ही और बात करते हैं. प्रॉब्लम क्यों है ये? वी ऑल नो, बचपन से सिखाते आ रहे हैं दैट मिल्क इज अ की सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रंस, फॉर प्रेग्नेंट विमेन्स. तो जहां पर ये अनइक्वल मिल्क एक्सेस होगा वहां वीकर न्यूट्रिशन होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी एज कंपेयर टू द वेल्थियर ग्रुप्स. तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम सॉल्यूशन पे आए कि हम मिल्क सब्सिडीज दें किनको? लो इनकम फैमिलीज को. और जो लो कंजम्पशन रीजन्स जहां पर हैं वहां पर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हो मिल्क का. क्या हम डेयरी कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते इन द रूरल एंड ट्राइबल एरियाज? Milk is a very important, you can say one of the most nutritious food in India. स्ट्रॉन्ग हड्डियाँ वो मजबूत होती हैं, कैल्शियम होता है, ये बेसिक है, हम सबको पता है. विटामिन B12, विटामिन D सब यहाँ से आता है. So it matters. So what all we can, what government is doing? We have Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, we have integrated child development schemes. Right? फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा दे सकते हैं फॉर द स्कीम्स दैट डिस्ट्रीब्यूट द मिल्क. सो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं. मैनी ऑफ द थिंग्स कैन बी डन. So we need to create such policies that increase milk availability, that provide financial support for milk distribution, that raise awareness to ensure that everyone, चाहे वो poorest community ही क्यों ना हो, they have fair access to the nutritious milk. Right? Clear है? तो we can go for देखो डेयरी फार्मर्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को. फिर यहाँ पर you have to invest in dairy infrastructure also. राइट? सो सरकार ने क्या और स्टेप्स लिए हैं? राष्ट्रीय गोकुल मिशन सरकार की है, नेशनल डेयरी प्लान, किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, सारी स्कीम्स हैं सरकार की. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन. द ग्रोथ रेट इज लोअर देन व्हाट द गवर्नमेंट हैड एक्सपेक्टेड. Looking at the past trends, 2004 to 2011 period had high growth and poverty reduction supported by welfare programs and government interventions. देखो, इकोनॉमी का एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है. Let's have a look. इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ is expected to be slower than what the government had originally predicted. That is what it is in news. सरकार ने ये आशा लगाई विल हैव अ हायर रेट ऑफ ग्रोथ, बट रीसेंट ट्रेंड ये शो कर रहा है कि इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग एज क्विकली एज एक्सपेक्टेड. 2004 से 2011 का जो अगर हम ये टाइम फ्रेम देखें तो इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस करी. पॉवर्टी रिडक्शन बहुत हुई, सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए. वर्ल्ड बैंक ने अभी करंटली क्या फॉरकास्ट किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ. वर्ल्ड बैंक हैड फोरकास्टेड कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ विल बी 6.5% फॉर 2024-2025. ये जो प्रीवियस एक्सपेक्टेशन थी 7% की, उससे कम है. मतलब इंडिया की इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, इन्वेस्टमेंट्स दैट आर बीइंग मेड दे आर लेस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग एज स्ट्रॉन्ग एज एक्सपेक्टेड. आईएमएफ ने क्या कहा?
IMF has also revised its forecast. It now expects India's growth to be 7% for financial year 24, but 6.5% for financial year 25. IMF sees strong domestic demand as a positive factor. But IMF is acknowledging that there are challenges, weak manufacturing growth and investment भी slow है. So we'll talk about कि 2000, ये पहले तो एक टाइम फ्रेम देख लेते हैं. 2004 से 2011 वाला जो टाइम फ्रेम रहा है, इस टाइम पे क्या था? वेलफेयर प्रोग्राम्स आए और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे प्रोग्राम्स आए. इनकम इनइक्वालिटी चाहे इंक्रीज हुई, द बॉटम 80% ऑफ द पॉपुलेशन, बट इवन दो दैट इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज, बट द बॉटम 80% ऑफ द पॉपुलेशन दे स्टार्ट स्पेंडिंग मोर देन बिफोर, क्योंकि सरकार टारगेट कर रही थी लोअर इनकम ग्रुप्स पे कि उन, देखो ओवरऑल आप क्या चाहोगे, आप किसी की स्पेंडिंग पावर को इंक्रीज करें, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक, देखो अगर डिमांड ही नहीं होगी, जेब में नहीं है 10 रुपए, तो क्या ही खर्च करेंगे, है ना. और सरकार और कहाँ खर्चा करे? एडुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे. ये रहा है. सरकार कहाँ पैसा खर्च करती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, सरकार का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ हो रही है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये मैंने आपको बताया, स्टेट का इंटरवेंशन, राइजिंग कंजम्पशन अमंग द लोअर इनकम ग्रुप्स, वो भी हुआ है, और फिस्कल एक्सपेंडिचर बड़ा है ऑन सोशल सर्विसेज. तो सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है? अगर सड़क बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मशीनरी बनाने में खर्चा हो रहा है, तो उससे ग्रोथ होगी, है ना. अगर खर्चा हो रहा है सैलरी देने में, सब्सिडी देने में, वहां पर दिक्कत भी आ सकती है. बोथ वेज है. ये भी है कि एक नया हाईवे बनाया, इट माइट हेल्प बिजनेसेस, बट इट नॉट इमीडिएटली गिविंग पीपल मोर मनी टू स्पेंड. दैट इज ऑल्सो पॉइंट. बट अगर आप वेलफेयर प्रोग्राम्स पे खर्चा कर रहे हो, यू आर गिविंग वेजेस टू द गवर्नमेंट वर्कर्स, यू आर गिविंग पेंशंस, इससे कंजम्पशन बढ़ती है, क्योंकि लोअर इनकम जो ग्रुप है उसके हाथ में पैसा आएगा, खर्चना, डिस्पोजेबल इनकम आएगी, तो वो खर्च करेंगे ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड बढ़ेगी. तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट ऑल्सो हेल्प द इकोनॉमी. अगर सैलरी बढ़ेगी तो आप भी तो खर्चा करोगे, ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. जब हाथ में पैसा होगा खर्चने के लिए, तो बिजनेसेस देख पाएंगे कि डिमांड बढ़ रही है उनके प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो साइकिल बन गई, राइट. सो दैट इज द पॉइंट. कैपिटल स्पेंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, रिवेन्यू स्पेंडिंग भी इंपॉर्टेंट है. आई होप यू गॉट दैट क्लैरिटी. क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क पता है सबको? Capital expenditure, that is focused on spending on projects like buildings and roads and bridges and airports and heavy machinery investment. यहां से जॉब मिलेगी, ग्रोथ होगी. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेलफेयर प्रोग्राम्स पे खर्चा करा, वेजेस पे किया, जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं उनकी पेंशन पे किया फॉर द एल्डरली पीपल, तो डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है? पुअर पीपल को, क्योंकि उनके पास हाथ में पैसा आएगा. तो टाइप ऑफ स्पेंडिंग ऑल्सो मैटर्स. ठीक है, क्लियर है? आई होप यू हैव गॉट दैट माइंडसेट. ये आप अपने इंटरव्यूज में भी यू कैन टेक दिस पॉइंट. तो फॉर दिस इट वॉज ऑल, एंड प्लीज डू मेक योर नोट्स
Thank you for giving your valuable time and meet you in the other session. Take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best.